بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہے انگریزی زبان میں ڈرامہ کی صنف کا ارتقاء۔ انگریزی زبان میں ڈرامہ کی صنف کا آغاز 12ویں صدی عیسوی سے ہوتا ہے، جب کلیساؤں نے انجیل کے واقعات کو اداکاروں کے ذریعے کیریکٹرز کی شکل میں دکھانا شروع کیا۔ چونکہ ان ڈراموں میں بائبل کی تعلیمات کو براہ راست کہنے کے بجائے واقعے کی شکل میں دکھایا جاتا تھا، لہٰذا ان ڈراموں کو ہسٹری پلیز یا پر اسرار ڈرامے کہا جاتا تھا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان ڈراموں کی مقبولیت اتنی بڑھتی گئی کہ کلیساؤں کے ان پادریوں کو یہ ڈرامے اپنے چرچ سے نکال کر چوراہوں میں لانا پڑے۔ ناظرین، 12ویں اور 13ویں صدی تک یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہا۔ 14ویں صدی کے آخر تک ہسٹری پلے نے ایک اور صورت اختیار کر لی جسے موریلٹی پلے کہا جاتا تھا۔ موریلٹی پلے میں خوبیوں، مثال کے طور پر راست بازی، ایفائے عہد، صدقہ اور رحم دلی کو انسانی شکل میں پیش کیا جاتا، جبکہ خامیوں یعنی جھوٹ، حسد، غصہ اور ظلم وغیرہ کو بھی انسانی صورت میں دکھایا جاتا تھا، اور ایک آدمی پر ان کے اثرات اور اس کی اندرونی کشمکش کا جائزہ لیا جاتا تھا۔ یہ سلسلہ 16ویں صدی تک یوں ہی چلتا رہا، یہاں تک کہ ایلزبیتھن دور کے مشہور ڈرامہ نگاروں ولیم شیکسپیئر اور کرسٹوفر مارلو نے اس یکسانیت کے جمود کو توڑا اور انگریزی زبان و ادب کے لیے انسانی محسوسات اور نفسیات کی باریکیوں اور گہرائیوں میں اتر کر لازوال ڈرامے تخلیق کیے، جنہیں آج بھی شاہکار کا درجہ حاصل ہے۔ اس دور میں آکسفورڈ یونیورسٹی سے فارغ التحصیل نوجوانوں نے، جنہیں یونیورسٹی وٹس بھی کہا جاتا ہے، بھی ڈرامے لکھے۔ ان میں کرسٹوفر مارلو کے علاوہ نیش، جان لیلی، جان پیلے، ٹامس کڈ اور جارج گرین وغیرہ شامل ہیں۔ ناظرین، مارلو اور شیکسپیئر دونوں 1564 میں پیدا ہوئے، لیکن جواں مرگ مارلو اپنی مختصر سی زندگی میں چند ایک ڈرامے ہی لکھ سکا، جن میں ایڈورڈ ٹو، جیو آف مالٹا اور ڈاکٹر فاسٹس قابل ذکر ہے۔ ڈاکٹر فاسٹس ایک ایسے شخص کی کہانی ہے جو سائنسی علوم جاننے کے باوجود طاقت اور اختیار کے حصول کی خواہش میں شیطانی علوم سیکھنے پر آمادہ ہو جاتا ہے اور اپنی روح کو 24 سال کے لیے شیطان یعنی لوسیفر کے پاس گروی رکھ دیتا ہے اور اس کے بدلے طاقت اور اختیارات پا لیتا ہے۔ رینائسانس کے اس دور میں جب انسان کی صلاحیتوں کے نئے نئے امکانات روشن ہو رہے تھے، یہ ڈرامہ بھی ہیومنزم کے انہی اثرات کی غمازی کر رہا ہے۔ شیکسپیئر کے ڈراموں کو 4 حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ان میں سے سب سے پہلا ہسٹریز یعنی تاریخی واقعات پر مشتمل ڈرامے، جن میں سے بیشتر اس نے اپنی فنی زندگی کی ابتدا میں لکھے۔ ان ڈراموں میں ہنری VI، رچرڈ II، رچرڈ III، ہنری IV، ہنری V اور ہنری VIII شامل ہیں۔ ناظرین، دوسرا دور اس کی کامیڈیز کا دور ہے، یعنی وہ دور جس میں شیکسپیئر نے مزاحیہ ڈرامے لکھے۔ شیکسپیئر کی ڈرامہ نگاری کا تیسرا دور المیوں کا دور ہے، جس میں اس نے لازوال ٹریجڈیز تخلیق کی۔ ان ٹریجڈیز میں ہیملیٹ، میکبیتھ، کنگ لیئر، اوتھیلو، رومیو اینڈ جولیٹ اور اینٹونی اینڈ کلیوپیٹرا وغیرہ خاصے مشہور ہوئے۔ چوتھا اور آخری دور شیکسپیئر کی ٹریجی کامیڈیز
या रोमांसेस का दौर है, जिनमें अलमिया और हरबिया साथ साथ चलते हैं और आखिरकार एक खुशगवार अंजाम पर ख़त्म होते हैं। इस किस्म के ड्रामे शेक्सपियर ने अपने फनी कैरियर के इख्तिताम के नज़दीक लिखे। इनमें द विंटर्स टेल और द टेम्पेस्ट जैसे प्लेज शामिल हैं। शेक्सपियर और मार्लो दोनों के ड्रामों के ताबाजात प्लाट बहुत कम हैं। अक्सर ड्रामों के प्लाट या मरकजी वाक़यात यूरोपी ममालिक की इलाकाई दास्तानों से माखूज हैं, लेकिन शेक्सपियर का कमाल ये है कि उसने उन्हीं वाक़यात को अपने ड्रामों में लाकर अपने किरदारों और मुकालमों के ज़रिए उन्हें अदब के लाफानी शाहकारों में तब्दील करके अपने नाम कर लिया है। शेक्सपियर के अलमिया पर बात करने के लिए एक अलहदा वीडियो दरकार है। यहाँ सिर्फ इतना ही कि उसने इंसानी महसूसात और ख्वाहिशात को इस शायराना जज्बे के साथ पेश किया है कि हर बार देखने पर ये ड्रामे नई नई ताबीरें लेकर आते हैं। इन पर आज तक बहुत कुछ लिखा जा चुका है और अभी बहुत कुछ लिखा जाना बाकी है। इसी दौर का एक मारूफ कॉमेडियन ड्रामा निगार बेन जॉनसन, जिसके मारूफ ड्रामों में एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, द अल्केमिस्ट और वाल्पोन शामिल हैं। इसके ड्रामों की एक खसूसियत ये है कि इनमें कॉमेडी ऑफ ह्यूमर यानी मुख्तलिफ किरदारों की आदत और उनके रवैयों की मदद से हंसी और मजाक का तासुर पैदा किया जाता था। नाज़रीन, 1642 में प्योरिटन्स की हुकूमत आने के बाद थिएटर्स पर पाबंदी लगा दी गई, जो 1660 तक जारी रही। 1642 से पहले जिन ड्रामा निगारों के ड्रामे थिएटर में पेश किए जाते थे, उनमें थॉमस हेवुड, जॉन वेबस्टर, जॉन फ्लेचर, फ्रांसिस बीमॉन्ट और जॉन फोर्ड वगैरह नुमाया है। 1660 में इंग्लैंड में बादशाहत या मोनार्की की बहाली के बाद के अरसे को रेस्टोरेशन पीरियड कहा जाता है। इस अरसे में थिएटर्स खुलने के बाद सामने आने वाले अहम ड्रामा निगारों में जॉन ड्राइडन और विलियम कॉन्ग्रीव के नाम काबिल जिक्र हैं। ड्राइडन के अहम ड्रामों में द इंडियन क्वीन, द कंक्वेस्ट ऑफ ग्रेनेडा, औरंगजेब और ऑल फॉर लव शामिल हैं, जबकि कॉन्ग्रीव के ड्रामों में एक कॉमेडी द वे ऑफ द वर्ल्ड और लव फॉर लव नुमाया अहमियत के हामिल हैं। 18वीं सदी के अहम अंग्रेजी ड्रामा निगारों में शेरिडन का नाम आता है, जो एक कॉमेडियन था और उसके मारूफ ड्रामों में द राइवल्स, द स्कूल फॉर स्कैंडल शामिल हैं। 18वीं और 19वीं सदी में ड्रामा की सिन्फ ज़रा पीछे चली गई थी, जिसकी मुतअद्दिद वजूहात थीं, जिनमें से एक नावल की सिन्फ का ज़हूर भी एक अहम पहलू है। ताहम 19वीं सदी के अवाखिर में बरतानिया में ड्रामे की सिन्फ का आया हुआ, जिसका सेहरा दो अजीम आयरिश कॉमेडियंस को जाता है, जिन्होंने विक्टोरियन दौर में इस सिन्फ को एक बार फिर से जिंदा कर दिया। ये ड्रामा निगार थे ऑस्कर वाइल्ड और जॉर्ज बर्नार्ड शॉ। ऑस्कर वाइल्ड के मज़ाहिया खेल, जहानत, हिट और कॉमेडी ऑफ मैनर्स का शाहकार है। उसके ड्रामों में द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग अर्नेस्ट, एन आइडियल हस्बैंड और लेडी वेंडरमेयर्स फैन खास तौर पर मशहूर है। जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के मज़ाहिया ड्रामों में मुरवजा रसूमात, खास तौर पर जंग और मोहब्बत से वाबस्ता रोमानवी और मिसाली तसव्वुरात का मजाक उड़ाया गया है और इंसानी फितरत की हकीकी तर्जुमानी हल्के फुल्के अंदाज में करने की कोशिश की गई है। शाह के मारूफ ड्रामों में आर्म्स एंड द मैन, द डेविल्स डिसाइपल, यू नेवर कैन टेल, सीजर एंड क्लियोपेट्रा,
मेजर बारबरा, मैन एंड सुपरमैन, पिगमेलियन, हार्ट ब्रेक हाउस और गोल्डन डेज वगैरह काबिल जिक्र हैं। 20वीं सदी के आम ड्रामा निगारों में एक आम नाम शान ओकेसी का है, जो एक आयरिश ड्रामाटिस्ट था और जिसके मशहूर ड्रामे का नाम जूनो एंड द पेकॉक है। नाज़रीन, टी.एस. इलियट एक शायर और नकाद होने के साथ साथ एक ड्रामा निगार भी था और उसका ड्रामा मर्डर इन कैथेड्रल नुमाया अहमियत का हामिल है। दूसरी जंग अजीम की तबाहकारियों के नतीजे में होने वाली तबाहकारियों के रद्द-ए-अमल के तौर पर वजूदियत यानी एग्जिस्टेंशियलिज्म के फलसफे को फरोग हासिल होना शुरू हुआ तो थिएटर ऑफ द एब्सर्ड सामने आया, यानी ऐसे ड्रामे जिनका मौजू इंसानी जिंदगी की लाजहनियत और इंसानी कोशिशों की बेमकसदियत था। इस किस्म के ड्रामों में सैमुअल बेकेट के ड्रामे वेटिंग फॉर गोडो और हैरोल्ड पिंटर के ड्रामे द केयर टेकर को खसूसी अहमियत हासिल है। अमरीकी ड्रामा निगारों में यूजीन ओनील और आर्थर मिलर के नाम नुमाया है। यूजीन ओनील के मारूफ ड्रामों में लॉन्ग डेज जर्नी इनटू नाइट और मॉर्निंग बिकम्स इलेक्ट्रा खास तौर पर काबिल जिक्र हैं, जबकि आर्थर मिलर का मारूफ ड्रामा द क्रूसिबल है। नाजरीन, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ऐसी ही और मालूमाती वीडियोस देखना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। शुक्रिया।